Two parts. Okay, which one? First one is which? Prokaryotic. Prokaryotic. Yes. And eukaryotic. Prokaryotic. Prokaryotic मतलब क्या बच्चा? Pro stands for what? Primitive. Primitive. Yes, primitive. So which kingdom? It is unicellular or multicellular? Unicellular. Unicellular. Which kingdom represents prokaryotic organisms? Monera. Yes. And which organisms? All bacteria. All bacteria. Yes, very good. Now eukaryotic is divided into how many parts? Two. Two parts. That is? Unicellular and multicellular. Yes. Multicellular में क्या आ जाएगा आगे? Kingdom Protista. Yes, kingdom Protista represents unicellular eukaryotic living organisms. Okay. Now multi is further divided into how many parts? Two parts. Which one? Presence of cell wall and Absence of cell wall. Presence of cell wall and absence of cell wall. So presence of cell wall divided into how many parts? Two parts. Two parts, heterotropic and autotropic. Very good. So heterotropic means which kingdom? Fungi. Autotropic which kingdom? Plantae. Absence of cell wall which kingdom? Yeah. So we are done with this living organism classification and सबको याद है. That is very good. इसके बाद बच्चे हमने कुछ characteristics किए थे special, याद है? Of this particular kingdom. Okay. So now after this we'll see that. So characters में we are done with the characters of Monera, Protista, fungi, right? Yes. थोड़ा सा रिवीजन हो जाए. So मैं characters बोलूंगी, आप बताते जाना. Okay. So first one is Monera. Cell type is? Prokaryotic. Okay. Cell wall presence or absence? Present. Cell wall in prokaryotic present or absent बच्चा लोग? Present. Okay. Nuclear membrane absent or present? Absent. Present. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन बोला प्रेजेंट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? हमने यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक हमने दो चीज में डिफाइन किए है ना. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन. बराबर. न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन मतलब बच्चा लोग इट इज टॉकिंग इन रेफरेंस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. समझ में आया? So here Monera is nothing but it is a prokaryotic. Prokaryotic मतलब primitive nuclear organization. Primitive nuclear organization मतलब absence of nuclear membrane. समझ में आया? समझ में आया बच्चा लोग? Yes, miss. Yes. Okay. अभी किसी ने present बोला ना इसके लिए. So body organization is going to be like how? Unicellular, multicellular, organ or tissue system क्या होगा? Unicellular. Yes. Mode of nutrition? Autotropic, heterotropic. Autotropic and heterotropic. Auto is further divided into how many? Autotropic and chemotropic. Autotropic is further divided into phototropic and chemotropic, right? Yes. And hetero is further divided into? Saprophytic and paraphytic. Parasite. Okay. I hope सबको ये differences पता है चारों के. Yes. Yes. So next one is what is the ecological role of monerans? Decomposers. So next is protista. Prokaryotic, eukaryotic. Eukaryotic. Then cell wall presence or absence? Present. Nuclear membrane absence or present? Present. Unicellular, multicellular. Unicellular. Mode of nutrition of protista? Autotropic and heterotropic. Okay, autotropic में which one?
केमो और फोटोसिंथेटिक. Photo. Photosynthesis. Okay. Then role. Producer. Producer. Producers. After that, the next one is fungi. So prokaryotic, eukaryotic. Eukaryotic. Cell wall absence or presence? Present. Absent बोला क्या किसी ने? फंगाई में बच्चा present, it is made up of chitin, बताया था ना? Cell wall is present in fungi. Okay. Nuclear membrane presence or absence? Present. Which type of organization? Multicellular. Yes. Mode of nutrition? Autotrophic. Heterotrophic. Role? Ecological role? Decomposers. Decomposers. Okay, very good. सबको यहाँ तक clear है? Yes, miss. Now we'll do the classification of Plantae and Animalia. There is no doubt till here, right? So Plantae and Animalia. तो comparison करते वक्त पढ़ते जाएंगे. Prokaryotic, eukaryotic, Eukaryotic. Animalia, prokaryotic, eukaryotic. Eukaryotic. Okay. Cell wall presence or absent? Present. Present. Cell wall. Absent. Nuclear membrane present or absent? Present. Here. Present. Then body organization. Multicellular. Okay. And here. Multicellular. Okay. Now one more thing. जैसे कि बच्चा हमने क्या किया यहाँ पे डिस्टिंग्विश किए थे सारे के सारे किंगडम्स एक साथ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, बराबर. तो यहाँ पे तो ये दोनों यूनिसेलुलर है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, दिस इज यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, बराबर. अब मल्टी सेलुलर में आपके तीन के तीनों आ रहे हैं, करेक्ट? तो डू वी नो द ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? जैसे कि सेल्स आते हैं, बहुत सारे सेल्स साथ में आके क्या बनाएंगे? टिश्यू. टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन से क्या बनेगा? Organ system. यस, एग्जैक्टली. ठीक है. तो यहाँ पे यूनिसेलुलर में हमने डिस्टिंग्विश किया. फंगाई हमारा क्या हो गया? इट इज अ मल्टी सेलुलर, राइट? तो अब ये तीन के तीनों मल्टी सेलुलर हो गए, तो सेलुलर लेवल में भी कुछ तो डिफरेंस चाहिए. सो दिस इज मल्टी सेलुलर. और प्लांट में यू आर गोइंग टू सी मल्टी सेलुलर और ऑर्गन. अभी जो उसके प्लांट्स के लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, स्टेम होते हैं, ऑल दैट थिंग्स आर ऑर्गन. समझ में आया? तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर तो हम लिखेंगे, बट इट इज लाइक कि बहुत सारे सेल्स साथ में आके यहाँ पे क्या बना रहे? टिश्यू, और यू कैन से एन ऑर्गन. समझ में आया? Yes, miss. So there is no difference. मल्टी सेलुलर भी ये है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अपर लेवल पे अपग्रेड हुआ है ना. तो बहुत सारे सेल्स मिला के यहाँ पे एक सेल से ज्यादा भी डिस्क्राइब दैट मल्टी सेलुलर, राइट? मल्टी सेलुलर में भी बहुत सारे साथ में आके मिला के क्या बनाते हैं? टिश्यू. समझ में आया? Yes, miss. किसी को कुछ डाउट? No, miss. यस. तो यहाँ पे जैसे टिश्यू और ऑर्गन, तो यहाँ पे थोड़ा सा और अपग्रेड होगा, और हायर लेवल. क्या आ जाएगा बच्चा? ऑर्गन के बाद मोर हायर लेवल इज व्हाट? Organ system. Yes. So here tissue, or you can say organ system. Is it clear? Yes. Okay. This mode of nutrition, यहाँ पे प्लांटे का mode of nutrition क्या है बच्चा लोग? Autotrophic. और उसमें कौन सा ऑटोट्रोपिक में? फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक? Photosynthesis. And in animalia, any idea? Heterotrophic. Heterotropic. In heterotropic, which one? Any idea? Animal shows ingestion of food. मतलब खाना वो खुद से लेके अपने मुंह में खाते हैं, right? This is called as ingestion. सुनो पहले कभी.
Yes. Yes, miss. Yes, miss. Okay, so ingestion of food is called as heterotrophic में तो है, but this is called as holozoic mode of nutrition. समझ में आया? So animal shows holozoic mode of nutrition. Is it clear to everyone, बच्चा लोग? Yes, miss. Yes. Okay, now then the last is ecological role of the plants. मतलब क्या है? They are producer, decomposer. Producers. Yes. And what about animals? Consumer. Consumers. Exactly. जिसको नहीं समझा ध्यान से सुनो. जो भी चीजें प्रोड्यूस होने वाली जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स क्या करते हैं वो उसके ऊपर कंज्यूम करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई दे आर दी कंज्यूमर्स, वो उसको खाते हैं. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सारे कैरेक्टर सबको अच्छे से समझ में आए? डिफरेंस 5 के 5. ओके Yes, miss. Yes, miss. ओके, यू वांट टू राइट इट? Yes, miss. ओके, राइट इट फास्ट. डन बच्चा लोग? No, teacher. ओके. हो गया मिस. सबका हो गया? Yes. हो गया miss. teacher. ओके. सो नेक्स्ट बच्चा लोग, जैसे कि लास्ट टाइम वी हैव डील विद सम टर्मिनोलॉजीज जैसे कि सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ये 2-3 चीज हमने लास्ट टाइम देखी थी. अगर किसी को नहीं याद है तो थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं. सो द 3 टर्मिनोलॉजीज आर सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, ये बीच में दैट इज टैक्सोनॉमी. ओके, so first one is systematics. कुछ अलग ही दिख रहा है. Okay, systematics, classification and taxonomy. So बच्चा लोग systematics क्या होता है, क्या बताया था मैंने? What is the systematics? Any idea? It is nothing but the study of various organism. अलग अलग diversity का बहुत अच्छे से study करना, that is called systematics, right? Study of Yes, different kinds of a variety of organisms is called as systematics. So systematics लिखो और उसके एक लाइन डाल के उधर आगे लिखो उसका definition. The study of various variety or diversity of organisms This is study of the study of various varieties or diversity of organism. Diversity is also like variations, different types, right? Or variety is also same. So जिसको diversity नहीं समझ रहे, they can understood by variety. So systematics is the study of diversity of organisms लिखे and their relation between and their, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिखो, and their
evolutionary relationship. Okay. So what is systematic study of various different types of organisms and their evolutionary relationship. आपस में क्या कनेक्शन, अभी जैसे आप लोगों को पता है ह्यूमन किससे इवॉल्व हो क्या है बच्चा लोग? Monkeys. Monkey. Monkey. So this is called evolutionary relationship, right? So systematics is nothing but आप अलग अलग organism, various diversity, various variety study करो और आपस में उनका evolutionary relationship देखना. Is it clear to everyone? Yes, miss. Yes. Yes, miss. Okay. Now after studying the different organisms with their मतलब उसको compare किया हमने what is the relationship. Next one is your taxonomy. तो taxonomy means क्या बच्चा? अभी जैसे आपने कोई चीज एक चीज स्टडी की, ठीक है, आफ्टर स्टडिंग आफ्टर सीइंग कि इसका ये कैरेक्टर है, so you are going to now arrange it means classify it, right? जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, एक लिया प्लांटी, एक लिया एनिमेलिया, बराबर, कैरेक्टर्स हमने देखे. अब अगर हमको कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलता है जिसमें हमको कैरेक्टर्स क्या दिख रहे, देखो यूकैरोटिक है, प्रोड्यूसर्स है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है, तो आप किस में रखने वाले हो, एनिमेलिया या प्लांटे में? प्लांटे. वाई? मैम प्रोड्यूसर है ना. यस, प्रोड्यूसर्स और प्लस सेल वॉल का प्रेजेंस दिख रहा है यहाँ पे, जो कि एनिमल में एब्सेंट है, राइट? सो दिस आर द थिंग्स जब हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं सारे नए नए ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट वेराइटीज को, सो आफ्टर दैट वी हैव टू क्लासिफाई इट, राइट? जो पहले से हमारे पास बने हुए उससे हम कैरेक्टर्स क्या करेंगे, मैच करेंगे कि किसके साथ वो ज्यादा मैच हो रहा है, देन वी विल पुट इट इनटू दैट कॉलम. समझ में आया सबको? यस मैम. Yes. ओके. सो टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट उसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. जो प्रॉपर आपका रूल्स और प्रिंसिपल्स बना उसके अकॉर्डिंग उसको वहां पे क्लासिफाई करना. इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चा लोग? Yes, miss. Yes, Okay. ma'am. Yes, miss. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन. तीनों का पहले डिफरेंस समझते हो कि क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है. अभी हमने देखा कि टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स देखते हैं, कंपेयर करके उसको उस हिसाब से प्लेस करते हैं, राइट? देन व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मतलब ये होता है द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. यस, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. या तो आप उसको ग्रुप्स पे रखिए या तो कैटेगरी. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी यहाँ पे KPC ऑफ GS देखा है हमने, राइट? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ओके, सो दिस आर द कैटेगरी यू कैन से. समझ में आया? एक किंगडम की कैटेगरी, फाइलम की कैटेगरी, प्लांटी किंगडम की एक कैटेगरी है, एनिमेलिया किंगडम की एक कैटेगरी है. समझ में आया? सो क्लासिफिकेशन इज लाइक कि किस कैटेगरी में किसको रखना है, दैट इज फॉर क्लासिफिकेशन. चलो टैक्सोनॉमी में एक लाइन लिखो आगे, सिर्फ एक एक लाइन लिखो. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो टैक्सोनॉमी में लिखो वर्ड, देन डैश करके लिखो. इट मीन्स classification with respect to rules and principles. It means classification with respect to rules and principles. मिस हाँ बच्चा. मिस हमें चैप्टर 1 के नोट्स लिखने हैं. चैप्टर 1 के क्या नोट्स लिखने हैं. लिखने मतलब आपने लिखे नहीं थे? जो आपने सिखाया वो लिखे हैं, अभी जो टेक्सचुअल है वो नहीं लिखे हैं. टेक्सचुअल आप क्लासेस में पूछ लेना, लिखने अगर वो बोलते हैं तो आप लोग लिख लो. मेरे दिए हुए नोट्स लिखे हैं ना आपने ऑलरेडी? यस मिस. तो टेक्सचुअल के लिए आप पूछ लेना, ठीक है, जो मैम Yes. रहेंगे उनसे कि लिखना है क्या. लिखोगे तो दैट विल बी बेटर. ओके, यस कितने क्वेश्चंस है? इट इज उसको स्टडी करना. ओके, डू वन थिंग, राइट इट वन टाइम और उसको आप पूरा का पूरा क्वेश्चंस आप लोग बाहर करोगे, मतलब स्टडी करोगे, ठीक है, Yes, चैप्टर 1 के.
Yes. तो जब भी हमारा रिवीजन लेक्चर होगा चैप्टर 1 का, तो सारी चीजें आई वांट कि आपको सारी चीजें क्लियर हो, तो सारा चीज लिख के पूरा पढ़ लेना चैप्टर 1 का. Yes. इट विल बी योर टेस्ट. जब भी हमारा रिवीजन लेक्चर होगा, मैं टेस्ट लूंगी आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का. Yes. So are we done with taxonomy definition? मैम Yes, फिर yes. रिपीट कीजिए ना Yes, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन. Okay, taxonomy में लिखना है आपको. आपने taxonomy वर्ड लिखा, डैश करके लिखना है. It means the classification with respect to rules and principles. Okay, so आपका जो taxonomy, it means classify करो with respect to our rules और principles. ठीक है. एक लाइन और लिखो. The term taxonomy was given by A.P.de Kandol. A.P. Kandol. Okay. A.P. Kandol. So this taxonomy word was given by A.P. Kandol. A.P.D. Kandol. समझ में आया सबको? Yes, yes. ओके बच्चा लोग, अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लिखो और एक लाइन वहां पे लिखो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्लासिफिकेशन में अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट कैटेगरीज. इन डिफरेंट कैटेगरीज ऐसे लिखो, इन डिफरेंट कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन में अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट कैटेगरीज based on similarities and dissimilarities. अभी जैसे हमने देखा ना कैरेक्टर्स, हमने कोई भी नई चीज के देखे, सो वी विल कंपेयर इट कि किससे ज्यादा वो सिमिलर लग रहा है, फिर वी विल प्लेस इट इन दैट कैटेगरी. समझ में आया? मैम रिपीट करना. ओके, क्लासिफिकेशन में आपको लिखना है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स in different categories based on similarities and dissimilarities. Done? Yes. Okay, सबका होगा तीनों का. So systematics are nothing but the study of the different kind of organisms and their evolutionary relationships. Taxonomy means what? Classification with respect to rules or principles. And taxonomy means what? Classification with respect to rules or principles. And classification मतलब क्या होता है? Arrangement of organism in different categories, depending on what? Similarities and dissimilarities. Is it clear? Difference सबको समझा? Yes. Yes, miss. Okay. अब बच्चा लोग यहाँ पे जैसे हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा कि कैसा होता है, राइट? जैसे हमने 5 किंगडम किए, सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. यस और नो? Yes. ओके. सो सबसे पहले आपका जो क्लासिफिकेशन है, नॉर्मली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. How many types of classification? 3. 3 types. Yes. The first one is artificial type of classification. And the next one is natural. Difference देखेंगे अभी हम तीनों का. And the last one is phylogenetic. Okay. अब मुझे बताओ तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा अच्छा? Natural. Natural. Are you sure? Phylogenetic. Artificial.
बच्चे लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था, whenever we are writing such type of classification, such type of tree diagram, we are writing in respect of development. याद है? मोनेरा, ma'am. प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। So सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा होगा आपका? एनिमेलिया। So here also same. सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा होगा? Phylogenetic. Because as time passing, we are going on a developmental stage day by day, right? Yes, ma'am. सबको समझ में आया? Yes, miss. Yes. ओके, सो द डिफरेंस अभी देखते हैं। फर्स्ट वन जो आपका दैट इज द आर्टिफिशियल। सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इट बेस्ड ऑन जो मतलब नॉर्मल अभी जैसे हमको फ्लावर्स का करना है, ठीक है। स्वीट आपको पता है ना, फ्लावर्स में दो वर्ल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड एसेंशियल। डू यू नो? Yes. रिप्रोडक्टिव वर्ल्स में क्या आते हैं? Androecium and gynoecium. एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, यस। और एसेंशियल वर्ल्ड में Calyx and corolla. Corolla. यस। सो इन आर्टिफिशियल सिस्टम बच्चा लोग, इट वाज लाइक कि अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इट वाज डिपेंडिंग ऑन दिस एसेंशियल वर्ल्ड दैट कैन बी इजीली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट, राइट। तो आर्टिफिशियल वाज द फर्स्ट जो कि एकदम प्रॉपर मतलब इतना अच्छा नहीं था। इट वाज बेस्ड ऑन द फ्यू मतलब जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है ना, जो आपको सामने से फीचर्स दिख रहे हैं, जैसे कि हाँ ये प्लांट पानी में रहता है तो इट इज एक्वाटिक, ये टेरेस्ट्रियल पे रहता है तो इट इज टेरेस्ट्रियल, फिर कलर, फिर फॉर्म, उस बेसिस पे इस चीज को डिवाइड किया था। एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस। सबसे पहले तो नाम लिखेंगे। आर्टिफिशियल वाज प्रपोज्ड बाय whom? Linear. Linnaeus. Natural was proposed by whom? Bentham and Hooker. डिफिकल्ट लग रहा है क्या? बहुत इजी है, डोंट वरी, अभी आ जाएगा तो इट विल बी फाउंड एज इजी। सो फाइलोजेनेटिक वाज प्रपोज्ड बाय इंगलर एंड प्लांटर्स। दिख रहा है? Yes, तो ma'am. सबसे पहले एक डिस्टिंग्विश हमको तीनों का मिल गया। आर्टिफिकेशन क्लासिफिकेशन वाज proposed by Linnaeus, natural classification was proposed by Bentham and Hooker, phylogenetic classification was proposed by Engler and Prantls. Is it clear to everyone, bachcha log? Yes, ma'am. Yes. Okay, so now next difference, your artificial classification is based on observable कैरेक्टर्स, मतलब जो सामने सामने दिख रहा है उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं कि उसके पीछे डीप स्टडी किया उसके बाद में रिजल्ट दिया फिर इसको डिफाइन किया। समझ में आया? सो इट बेस्ड ऑन, जैसे कि अभी मैंने बताया ना, हैबिटेट, कलर, मतलब सामने सामने जो दिख रहा है ना उसके ऊपर ये इट वाज बेस्ड, जो कि इजीली इट कैन बी अफेक्टेड, राइट। सो दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल को उतना अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं माना गया। इज इट क्लियर बच्चा लोग, समझे सबको? Yeah. Yes, so it is based on observable characters which can be affected easily, ऐसा लिखना, which can be affected easily, so that's why it was found as unappropriate, मतलब उतना अच्छा इसको नहीं माना गया। Okay, now the next one is natural classification. तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा बेटर चीज, जैसे अगर हम प्लांट का ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव वर्ल्स को कंसिडर किया जो कि इजीली क्लाइमेट से अफेक्ट नहीं होते। ओके, सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, मतलब बेटर देन दिस, आर्टिफिशियल वाले से नेचुरल वाला थोड़ा सा बेटर है। सो इट वाज बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? Yes or no? Yes, ma'am. यहाँ पे आगे आप लिख सकते हो which cannot be affected easily.
एंड द लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में क्या होगा बच्चा लोग, नाम से ही फाइलोजेनेटिक मतलब कहीं पे भी है, इसका मतलब क्या, थोड़ी देर पहले भी हमने फाइलोजेनेटिक किया ना, Yes, कुछ miss. याद है, इवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू Taxonomy. इवोल्यूशन। ओके, सो फाइलोजेनेटिक में क्या आएगा बच्चा लोग, मतलब यहाँ पे आपके जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स है उसको कंसीडर किया जा रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू दैट, मतलब इन एडिशन टू दैट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स के अलावा भी अगर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि दैट यू शुड लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, राइट। सो आपका जो फाइलोजेनेटिक होता है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इवोल्यूशन। समझ में आया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ रहा बच्चा लोग? Yes, miss. Yes. So it is based on आपका जो इवोल्यूशन से सारी सारी चीजें आपस में रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी डिसेंट। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन इज इट क्लियर? Yes, डिफरेंस miss. मिल गया तीनों का? Okay, so first one it was proposed by Linnaeus, it was proposed by Bentham and Hooker, it was proposed by Engler and Prentice, and the next thing, it depends on observable characters that can be affected easily. It is depends on significant characters which cannot be affected easily, but still the best one is phylogenetic, right? Because it was based on evolutionary descent, मतलब एकदम proper with everything, आपका evolutionary क्या relationship है आपस में उसके ऊपर भी based है। So सबसे best कौन सा हुआ, your phylogenetic classification. Is it clear to everyone? Yes, miss. Okay, you want to write it? Yes, miss. Okay. Are we done? No, miss. Okay. Done बच्चा लोग? Yes, miss. So now we'll see about phylogenetic descent। जो भी देखा हम उसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्टडी किया, राइट। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का भी एक कॉमन एंसेस्टर है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन्स ऑफ लाइफ। अभी हम लोग देखेंगे कितने डोमेन्स होते हैं और कौन से होते हैं। आर वी डन विद दिस? Yes. सबका हो गया लिख के? ओके, तो नेक्स्ट वन इज डोमेन्स ऑफ लाइफ, जिसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी आप देखोगे। ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। डोमेन्स मतलब समझते हो बच्चा लोग? No. ओके, अभी तक आपने सबसे बड़ा किंगडम देखा, राइट, केपीसी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपका किंगडम है सबसे ऊपर, जिसमें हम लोग ने ये एनिमेलिया, प्लांटे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, वो सारी चीजें देखे। यस और नो? तो डोमेन इज अबव द लेवल ऑफ किंगडम, ठीक है। मतलब जो अभी तक हम किंगडम लेवल देख रहे थे, सबसे ऊपर किंगडम, फिर फाइलम, ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन होता है ना, तो डोमेन उसके भी ऊपर का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2,
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, राइट? So यहाँ पे you can say domain is further divided into two, that is prokaryotic और eukaryotic. Pro में भी दो है, eukaryotic में एक. Okay, so 3 domains of life are bacteria, आर्किया. आर्किया मतलब समझते हो, पहले कभी सुने हो? No. ओके, बैक्टीरिया पता और यूकैरियोटा पता है, राइट? यूकैरियोटा मतलब क्या? यूकैरियोट्स. बैक्टीरिया मतलब क्या? प्रोकैरियोट्स. Prokaryote. यस. आर्किया मतलब भी बच्चा लोग आर्किया बैक्टीरिया होता है. दिस इज ओनली बैक्टीरिया, दिस इज आर्किया बैक्टीरिया. द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज आर्किया बैक्टीरिया इज सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. एक्सट्रीम कंडीशन समझते हो? लाइक मतलब ऐसी जगह जहां पे नॉर्मल बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव. जैसे एकदम जैसे आप पानी का ओशन का बात कर रहे हो, ठीक है? तो एकदम नीचे पानी में एकदम डीप इनसाइड, या फिर थर्मल वेंट आप बात कर लो, एक्सट्रीम जहां पे हाई टेम्परेचर है, और इट इज लाइक एक्सट्रीम कोल्ड. समझ में आ रहा है? सो जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जो बैक्टीरिया फाउंड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया. इज इट क्लियर बच्चा लोग? Yes, ओके, डिफरेंस समझा ना दोनों का? वी नो व्हाट इज यूकैरियोटा मींस यूकैरियोट. बोथ दिस थिंग्स आर प्रोकैरियोट्स ओनली. दोनों भी बैक्टीरिया. दिस इज नॉर्मल बैक्टीरिया एंड दिस इज आर्के बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. सो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ में जैसे कि हमने देखा, सो यहाँ पे यू कैन राइट आर्के बैक्टीरिया सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. एनी आइडिया ऐसा क्यों पॉसिबल है? कॉमन मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव करा, बट व्हाई दिस आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव? एनी आइडिया, एनी गेसेस? Structures of cell wall. यस, वेरी गुड, एग्जैक्टली. बिकॉज इनका सेल वॉल, वी नो कि प्रोटेक्शन का काम किसका होता है? सेल का. सेल वॉल, राइट? सो हियर यहाँ पे आपका नॉर्मल बैक्टीरिया से कुछ तो अलग है आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में, दैट इज वेरी हार्ड एंड वेरी रेसिस्टेंट, राइट? जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस को भी क्या कर रहा है? झेल ले रहा है. करेक्ट? तो आर्के बैक्टीरिया इज डिफर इन द स्ट्रक्चर ऑफ cell wall, so survive in extreme conditions because, or you can say due to different structure of cell wall. बस, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है. देखो बैक्टीरिया, वी नो व्हाट इज बैक्टीरिया, राइट? यूकैरियोटा में सारे टाइप के आपके यूकैरियोट्स होते हैं, तो सिर्फ इतना ही लिखना है आपको. 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ क्या क्या होते हैं बच्चा लोग? बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोटा. बोलो सब लोग, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. बैक्टीरिया, Bacteria. आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरियोट. Yes, bacteria, archaea and eukaryota. Okay, bacteria is your normal bacteria. Archaebacteria that is survive in the extreme conditions like extreme cold, extreme hot, extreme salt wala condition, that is called extreme saline condition. So due to the different structure of their cell wall. लिखो फटाफट. मैम एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सट्रीम कोल्ड या हॉट. सारे बच्चा एक्सट्रीम कंडीशंस में बहुत सारे होते हैं ना. एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम सॉल्टी वाला एरिया दैट इज कॉल्ड सलाइन. हर जगह मतलब ये आपके बैक्टीरिया मिलते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस है. नॉर्मल कंडीशंस पे नॉर्मल कंडीशंस में आपके नॉर्मल बैक्टीरिया मिलेंगे ना. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. जो नॉर्मली आपके बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशंस में मिलते हैं, दे आर दी कॉमन बैक्टीरिया. जो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं ना, जहाँ पे आपका नॉर्मल बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, दैट इज ओनली कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया. समझ में आया? यस दैट इज द डिफरेंस ना. जहाँ पे आपका नॉर्मल जो कॉमन बैक्टीरिया, दैट विल बी नॉट फाइंड. वैसी वैसी जगह आपका आर्की बैक्टीरिया मिलता है. यस यस. Are we done with this? Yeah. यस
ओके, तो रब कर दूं, सबका हो गया? Yes, miss. ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन क्लासिफिकेशन पे आते हैं बच्चे लोग. So there are different classifications like chemotaxonomy, numerical taxonomy, cladogram, phylogenetic. अच्छा, अभी जो हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ देखा था, दैट वाज अ फाइलोजेनेटिक डिसेंट. समझ में आया किसी को वो? Yes, miss. Okay. So here certain different biological classifications are there. जैसे कि फर्स्ट वन है हमारा कीमो टैक्सोनॉमी. कीमो मतलब क्या बच्चा लोग? एनी आइडिया विद दिस वर्ड कीमो? केमिकल. केमिकल. यस, एग्जैक्टली. सो केमिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लाइक बॉडी में केमिकल कहाँ प्रेजेंट होंगे? organ. ऑर्गन. Hormones. ओके, सो जनरली आपका जो कीमोटैक्सोनॉमी है, इट इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, सॉरी, एंड डिफरेंसेस. अब डिफरेंसेस मतलब क्या, किसके बेसिस पे? अब आपका अगर केमोटैक्सी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल्स, राइट? तो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका, डीएनए, आरएनए, राइट? केमिकल्स प्रेजेंट है वहां पे, यस और नो? सो डिपेंडिंग ऑन द केमिकल देयर आर डिफरेंट टाइप्स, सो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर भी आपका चेंज होता है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. Yes. तो यहाँ पे आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चा लोग? इट इज लाइक एन इंटरेक्शन. आपको ये सेलुलर इंटरेक्शन समझते हो? साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, जहाँ पे एक्टिविटीज चलती है साइटोप्लाज्म में, इंटरेक्शन होता है. सो देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द सेलुलर ऑर्गेनल्स, मतलब सेलुलर के जो भी कंपोनेंट्स है और न्यूक्लियर के भी. सो देयर आर द केमिकल्स, वो केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं. ओके, सो chemotaxonomy is based on the similarities and differences in organism. पहला पॉइंट तो ये. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे अभी हम लोग जैसे कि केमिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो इट इज लाइक बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये तो खैर फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहिए. बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने सेल वॉल का डिफरेंस देखा था, राइट? बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में कि कुछ तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, यस और नो? Yes. Yes. So the difference between the structures of this bacteria, बैक्टीरिया में जो आपका सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. ओके, आर्के बैक्टीरिया में दिस थिंग इज एब्सेंट. अब अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में सेल वॉल किसका बना होता है बच्चा लोग? Cellulose. यस, सेलुलोज. और एनिमल में नहीं होता. cell wall is absent. Yes, exactly. So यहाँ पे you can see just because of this chemicals, the structures are different of this different categories. समझ में आया? So bacteria में your peptidoglycan is present, whereas in archaebacteria your peptidoglycan is absent. और यूकैरियोटिक में जैसे भी हमने देखा कि प्लांट्स में कैसा है हमारा, द सेल वॉल इज ऑफ सेलुलोज. इसके अलावा हमारा फंगाई भी यूकैरियोटिक है, राइट? फंगाई का सेल वॉल कैसा? इट इज मेड अप ऑफ chitin or you can say chitin. Okay, both the things you can pronounce, chitin or chitin. Okay, so fungi में the cell wall is made up of chitin. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, तो ये चीज याद रखने ना, सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ chitin, बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन, आर्के बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन इज एब्सेंट, प्लांट्स में सेलुलोज. So here we are done with this chemotaxonomy. सबको अच्छे से समझ में आया ना? नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. नाम से क्या समझ में आता है आप लोगों को? न्यूमेरिकल.
means what? numbers. Number. Yes, exactly. Very good. So numerical taxonomy में first of all it depends on the number of characters. Okay. इसके अलावा it depends on number of characters and also it based on observable characters. मतलब जो भी characters आपको सामने से दिख रहे हैं ना, that is called as observable characters. So it depends on that characters. कितने characters आपको, how many numbers, मतलब एक character, दो character, तीन character जो सामने से आपको you can see with the naked eye. But chemotaxonomy में ऐसा नहीं, जो chemicals it is present inside the cell. So are they observable character? No. सबको No. समझ में आया डिफरेंस? केमोटॉक्सोनॉमी केमिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तो आप उसको ऐसे नेकेड आई से देख के नहीं बता सकते, बट इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड हाउ मेनी नंबर, मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर विजिबल टू यू, जिसको आप देख के बता सकते हो, दैट इज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, so should I rub it? No. Yes. Okay, next one is क्या बच्चा? 1 minute रुको. Okay. Next one is cladogram. अब क्लैडोग्राम इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांचिंग पैटर्न. मतलब क्या, जैसे कि अभी हमने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ देखा, दैट इज कॉल्ड अ ब्रांचिंग पैटर्न. मतलब आपका एक यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर है, बराबर, दैट इज गोइंग टू डिवाइड फर्दर इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज. आपका बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया एंड योर यूकैरिया. समझ में आया? So this is nothing but called a cladogram, मतलब एक ब्रांचिंग पैटर्न. ऐसा ब्रांचिंग पैटर्न जो आपको रिलेशनशिप्स दिखाता है. जैसे अभी हमने पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पढ़ा, राइट? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक is further divided into unicellular, multicellular. Yes or no? So Yes, that is a ma'am. cladogram. So it is nothing but the branching pattern जो आपस में कुछ तो रिलेशन दिखा रहा है, रिलेशन डिस्क्राइब कर रहा है. So that is called as cladogram. So cladogram अगर आप लिख रहे हो तो it is nothing but a branching pattern that describe the relationships in between. Done everyone? Yes. Okay. So after this next one is evolutionary or you can say phylogenetic, both मतलब दोनों को interchangeably use होता है. तो अगर आपको कहीं पे भी फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक मिला, मतलब क्या, इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट बच्चा लोग? Evolutionary descent. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब आपस में क्या रिलेशन है एज ए इवोल्यूशन. ओके, सो फाइलोजेनी अगर कहीं पे भी वर्ड है, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट evolutionary relationships between the organisms. Is it clear? Yes, This is ma'am. and अभी जैसे हमने 3 क्लासिफिकेशन देखा, उसमें से सबसे बेस्ट वाला फाइलोजेनेटिक था, राइट? So you can say कि this evolutionary relationship plays an important role in classification. Yes or no? Yes, ma'am. So plays an important role in classification because आपका जो फाइलोजेनेटिक वाला था, it was the best classification. उसके अलावा इसको बेस्ट क्यों बोलते हैं? एनी आइडिया? क्योंकि देखो, अगर हम लोग कोई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अगर कंसीडर भी करते हैं तो दे कैन बी इजीली अफेक्टेड, राइट? बट व्हेन वी टेक इन कंसिडरेशन दिस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इट मींस कि हम लोग प्रॉपर इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो कनेक्ट कर रहे हैं, बराबर? तो वो ऐसा नहीं कि वो 1 साल, 2 साल, 10 साल या 20 साल का रिलेशनशिप रहता है, राइट? इवोल्यूशन समझ रहे हो, मतलब कितने टाइम के बाद होता है.
जैसे फ्रॉम मंकी टू ह्यूमन, तो इतना आसानी से हुआ है क्या इवोल्यूशन कि हाँ चलो 4 साल के बाद मंकी का इवोल्यूशन जो है वो ह्यूमंस में इवॉल्व हो गया? इज इट दैट मच इजी? No. No. So that's why it is like अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं तो वो इजीली अफेक्ट नहीं होता, ना इतना जल्दी चेंज होता है. दैट्स व्हाई दिस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज द बेस्ट वे टू क्लासिफाई द थिंग्स, बिकॉज ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना लंबे समय के बाद ये चीज फिर उसके बाद स्टडी के बाद इन चीजों को आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड विच डिपेंड्स ऑन द सिमिलैरिटीज एंड अगेन डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, राइट? Yes. Yes. वेरी गुड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा हमने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज प्रपोज्ड बाय विटेकर, आर.एच. विटेकर नाम है पूरा. ओके, दैट 5 किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर. तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन सी जहां पे हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख सकते हैं. मतलब जो हमने 500 देखा उसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप था आपस में. Yes. 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 So that will be the best example. So phylogeny समझा सबको? Yes. Yes. Okay. Now next one is DNA barcoding. DNA का मीन्स तो सबको पता है. Do you know what is barcoding? तो डीएनए बारकोडिंग बेसिकली एक नया मेथड है बच्चा लोग जो अभी मतलब मार्केट में आया, जिसपे आप ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन उनका जो डीएनए का सीक्वेंस होता है. वी नो कि डीएनए का पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, Yes. 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 राइट? सो यहाँ पे आपका जो डीएनए बारकोड है, इट इज अ न्यू मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ओके, so method of identification based on what? DNA sequence. Yes, exactly. So it is based on DNA sequence. Now this DNA barcoding generally यहाँ पे आपको अगर DNA sequence find करना है तो सबसे पहले आपको कुछ सैंपल चाहिए, राइट? अभी जैसे ह्यूमंस का अगर आपको डीएनए सैंपल चाहिए तो आपको पता है हेयर में प्रेजेंट होता है डीएनए, एज ए सैंपल लेते हैं. Yes or no? तो ऐसे ही सेम अगर आपको सीक्वेंस फाइंड करना है तो यू हैव टू गेट अ सैंपल, राइट? तो जो प्रोसेस है डीएनए बारकोडिंग का, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस, मतलब 2 मेथड्स, सॉरी 2 स्टेप्स. तो सबसे पहले कलेक्टिंग अ डीएनए बारकोड डेटा ऑफ नोन स्पीशीज. दूसरी चीज मैचिंग करना. अभी आपने जो डीएनए सीक्वेंस निकाला, ठीक है, समझ लीजिए आपने ये डीएनए सीक्वेंस आपको कुछ तो मिला ATGC80. ये सब का मतलब जानते हो? व्हाट इज दिस ए? Yes. Miss. Yes. Okay, so this is adenine, thymine, guanine, cytosine, all these things you know. Yes. 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 Okay, so generally अभी आपका ये एक डीएनए सीक्वेंस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, डीएनए बारकोडिंग से आपने एक सीक्वेंस लिया, नाउ आप इसके जैसा दूसरा सीक्वेंस निकालोगे एंड देन आफ्टर दैट यू विल मैच इट. आप क्या करोगे, उससे उसको मैच करोगे. समझ में आया? मैच करने के बाद में बोलोगे कि इसका सीक्वेंस जो है इस ऑर्गेनिज्म से मैच हो रहा है, सो दिस इज एंड दिस ऑर्गेनिज्म. इज इट क्लियर? Yes. Yes. Miss. Yes. Miss. Yes. So बच्चा लोग, your DNA barcoding is consist of 2 steps. So first step is what? Collect a DNA barcode data of known species. मतलब जिस स्पीशीज को आप पहले से जानते हो उसका आप सीक्वेंस पहले लेके आओगे, तभी तो मैच करोगे ना. एक सीक्वेंस तो आपके पास था जो अभी मैंने यहाँ लिखा, राइट? सो यू आर गोइंग टू गेट अनदर सीक्वेंस फॉर मैचिंग. सो कलेक्शन DNA barcode data is the first step and second one is matching, right? Yes. Data of known species. सबको समझ में आया? Yes. Miss. Any doubt to anyone? No. Miss. Okay. So DNA barcoding is nothing but the method of identification based on DNA sequence, जो कि अभी नया नया find out हुआ है, which consists of 2 steps. First one, collection of DNA barcode data
ऑफ नोन स्पीशीज एंड द सेकेंड वन इज, फिर उसके बाद में हमने क्या करेंगे, जो हमारा सीक्वेंस है वी विल डू द मैचिंग ऑफ दिस टू, राइट, बिकॉज मैचिंग करेंगे विच इज एन अननोन सैंपल, जो हमारा खुद का सैंपल था। तो मैचिंग करने के बाद में हमको समझ में आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो वी आर डन फॉर टुडे। इसके बाद का भी नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर रहेगा आप लोग फर्स्ट चैप्टर का पूरा नोट्स लिख के एंड यू हैव टू बाइट इट, ओके? तो जब भी रिवीजन लेक्चर रहेगा इट इज लाइक अ टेस्ट फॉर यू ऑल। मिस क्लासेस से नोट्स प्रोवाइड किया है? यस मिस। तो